हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि एट द रेट जेआरएफ ग्रुप। So today I'm making this video to tell you about the best reference book that you can refer for your preparation of computer science paper 2 for the NTUGC NET examination. Definitely when we refer the good books, we will have the good result. One thing that I believe, if you have if you read the good books, definitely some magic is going to be there. So if you are going to learn the best reference book, the best knowledge with you, the best will happen in your life, in your career. So these are the book that you can refer for your preparation, that you can refer for the further teaching. जब आप एक assistant professor बन जाएंगे और आपको यदि ये subject teach करना है, still you can refer these book because these are the best collection I have collected. So आप इनको refer करिए for your preparation, because when you refer the good books and when you refer do your preparation from the books, you will get the good knowledge, and that good knowledge you can convey to your students, to your juniors and so on, correct? तो बेसिकली मैंने यहाँ पर सारे यूनिट्स के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक्स का कलेक्शन आपको दिया है. Please watch the video till end, because at the end I'm going to tell you two most important books that you should have to buy, that you should have to be collect while you are preparation for the UGC NET examination. करेक्ट. तो यहाँ हम बात करते हैं अबाउट माय प्रोफाइल. So I am Rashmi Vishkarma. I worked as an educator. I taught many students for the preparation of UGC NET. That's why I am creating this video. I also worked as a mentor to the PhD scholar. I am a content creator and YouTuber. This is my brief profile. Now, you can download my app from the Play Store. That is Rashmi at the rate JRF Guru. Very soon, I'm going to start the courses for your preparation for your December examination. So currently, 40% flat off is running, and this offer is valid till 25th of June. In this course, we are going to cover the syllabus in detailed manner. Here there will be the live classes, no recorded classes. There will be the live classes. PDF material will be there. Doubt sessions will be there. Practice sessions will be there. Practice mock test will be there. Validity जो होगी वो आपकी होगी till your examination, till your examination, and one to one guidance I will provide you. So very limited offer is there. ठीक है, very limited period offer is there. Limited seats are there. So if you want to prepare for with me for your examination, do enroll for these courses. Correct? Now let's start with the first unit. First unit is your discrete structure and optimization. So here, if I will divide this unit into the we have the two parts, discrete structure and optimization. For the discrete structure, the best book that we have, Kenneth Rosen. This you can use. This is the one of the best book. आपको PDF भी easily available हो जाएगा. So download this book or purchase this book and then prepare the discrete structure. All the concept of discrete structure are coming from this book. Now for the reference, you can refer this one. And for the graph theory, if you want to learn the graph theory in depth, then you can go for the nursing view. Now for the optimization, why I'm not included any book, because optimization is if in our college we have learned the optimization, that book is more than sufficient. So obviously in different university, in different colleges, we are using the different book for the optimization. So whatever book you have referred during your uh, post graduation or graduation, that you can refer here for the optimization preparation, that will be more than sufficient. Even though if you are going to prepare the optimization from the previous year question, that will also be sufficient because it covers the maximum concept. So don't bother about the book for the optimization. You can refer any online content as well. But for the discrete structure, Kenneth Rosen is the one of the best book. So you can go for it, you can purchase it, or if the PDF is available. Now, for the computer system architecture, I will suggest you the two important books that you can refer. First is the this one, Computer System Architecture by the Morris Mano, and another is this one,
that is by the writer I have mentioned here, Hampshire and Jackie. इनका आप 5th edition लेंगे computer system architecture का, and it is one of the best book. If you are unable to manage it, then you can go for the William Stallings. So these three books are more than enough for the preparation of digital logic, for the preparation of computer system architecture. And again, the PDF of these books are available. आपको available है, ठीक है? तो थ्योरी पर फोकस करिए, बिकॉज जो सीएसओ होता है यहाँ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो वी हैव टू फोकस ऑन बोथ थिंग, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल पोर्शन. नाउ यदि हम थर्ड यूनिट की बात करें, तो हियर वी हैव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स. फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगेन माय सजेशन इज दैट if you have learned the programming language, basically we have to focus on the two programming language, programming in C and C++. Basically we have Java as well, HTML भी पढ़ना होता है, XML भी पढ़ना होता है, we have to cover the JavaScript as well. But for all these, यदि हम जो resources हमको online available हैं, यदि हम उतना भी cover कर लेते हैं, that will be more than sufficient. प्रोग्रामिंग इन सी, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, या किसी भी प्रोग्रामिंग में जो चीज इंपॉर्टेंट है, इट इज अबाउट द लॉजिक्स. ठीक है, ये आपके लॉजिक्स हैं. और यदि आपने ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन प्रोग्रामिंग किसी भी बुक से प्रिपेयर किया है, जस्ट गो थ्रू दैट बुक अगेन, वंस अगेन. ठीक है, कोई भी सिंपल बुक हो सकता है, लेटेस्ट सी का बुक हो सकता है, कनेक्टर का बुक कनेक्टर का बुक हो सकता है, बालगुरुस्वामी का बुक हो सकता है. तो वॉट एवर बुक यू feel comfortable, go with that, revise the programming concept and prepare for the examination. But for the computer graphic, there is only one book. There is only one book that we have to refer, is computer graphics C version by Hearn and Baker. ठीक है, तो ये बुक आपको रेफर करनी है फॉर द कंप्यूटर ग्राफिक्स, फॉर द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स. करेक्ट. तो लाइक प्रोग्रामिंग तो जितना, जैसे हम मैथ्स जितना ज़्यादा सॉल्व करते हैं, उतना ज़्यादा यदि आप प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू विल गेट द मोर क्लैरिफिकेशन इन योर कॉन्सेप्ट. तो यू हैव टू लाइक फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट रिवीजन एंड डू द प्रैक्टिस एज मच एज प्रैक्टिस यू कैन डू. ठीक है, आप प्रोग्राम जब लर्न करते हो तो उनका ड्राई रन करिए, so that you will get the clarification of logic as well. तो प्रोग्रामिंग के लिए तो जो भी बुक आपको लगता है that you can refer, but from my side Danish Rishti is one of the best book for programming in C, and for C++ Balaguswamy is more than sufficient. ठीक है, so these are the book for the programming and computer graphics. Now बात कर लेते हैं next unit, that is your unit number 4, database management system. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको जो बुक रेफर करना है, इट इज योर दिस इज कोर्थ. ठीक है, डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट बाय द कोर्थ. ठीक है, ये 3 राइटर्स हैं, बट हम कोर्थ के नाम से ही जानते हैं. सो दीज 3 बुक्स, दिस बुक यू कैन रेफर. आपको A to Z डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल जाएंगे. ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट रेफर दिस बुक for the preparation, and again the PDF is available. बहुत अच्छी बुक है, इन डेप्थ लर्निंग करिए, एंड लाइक हर एक कॉन्सेप्ट आपको यहीं से मिलेगा, आपको कहीं से बाहर से स्टडी करने की जरूरत नहीं है फॉर द डेटाबेस मैनेजमेंट. हाँ, लेकिन एक चीज स्टडी करना होता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ जो यूनिट 4 है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एक तो आपका हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सेकेंड पार्ट इसमें आ जाता है डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग. So one of the best book that I have found for data mining and warehousing basic concept is Han and Campbell. Here you will get everything from A to Z, from definition of data mining to the algorithm for the clustering and the classification. Everything you will get in this book. So like this is the one of the best book that you can refer for the data mining and warehousing concept. Even though if you are going to prepare for a data science concept now, so a basic concept you can prepare with this book. So Han and Campbell is one of the best book for the data mining and the warehouse. Now यदि हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 5 की, तो वन बुक इज मोर देन सफिशिएंट. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ज्यादा बनते हैं. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रेफर दीज 2 बुक.
ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनल एंड डिजाइन प्रिंसिपल बाय विलियम स्टेलिंग्स। तो इनके यदि आपने न्यूमेरिकल कर लिए, कॉन्सेप्ट तो करना ही है, कॉन्सेप्ट तो करना ही है, प्लस इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज फ्रॉम दीज बुक, ऑपरेटिंग सिस्टम के मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो यू मस्ट रेफर दिस बुक। अगेन पीडीएफ अवेलेबल है, एंड इवन इफ यू विल गो विद माय नोट्स, यदि आप मेरे नोट्स रेफर करोगे तो डीबीएमएस के लिए मैंने कोड को रेफर किया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंने विलियम स्टेलिंग्स रेफर किया हुआ है। आई एम फॉलोइंग द स्टैंडर्ड बुक्स, तो जो मेरे नोट्स होते हैं वो भी स्टैंडर्ड बुक से ही मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं। नाउ यूनिट 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपने आप में एक यूनिक unit hai, because only one subject we have to cover here. So for the software engineering, one and only one book we have to refer is the Pressman. ठीक है, Pressman की बुक आप रेफर कर सकते हो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। ठीक है, नाउ यदि हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, तो फॉर द डेटा स्ट्रक्चर देयर इज द वन बुक दैट इज कॉल्ड द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मेड इजी बाय नारासिम्हा। ठीक है, बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा पीडीएफ अवेलेबल है, एंड लाइक एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो डेटा स्ट्रक्चर के लिए आप इसी बुक को रेफर करिएगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बाय दी नारासिम्हा। ठीक है, अदर बुक दैट यू कैन रेफर हियर इज fundamental of data structure, yeah, data structure and algorithm made easy, already I have told you. So this is the book by the Narasimha, so you can refer this one for the data structure preparation. Now यदि हम बात करें यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 8 में हमारे पास हमको कवर करना होगा टीओसी एंड कंपाइलर। नाउ टीओसी का जो बेस्ट बुक माना जाता है दैट इज पीटर लिंच। ऑब्वियसली इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली जो एग्जाम्पल है उनसे क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, जो एक्सरसाइज है उससे फ्रेम कर देते हैं क्वेश्चन। सो यदि आपको आपको चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो दैट इज फ्रॉम द पीटर लिंच। बट यदि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो यू हैव टू रेफर द सम एडिशनल बुक एज वेल। तो यहाँ आपको केएलपी मिश्रा भी रेफर करना होगा। इफ यू हैव एनी लोकल ऑथर, ठीक है, जिससे आपने कभी पढ़ा होगा, तो दैट यू कैन रेफर द योर पीजी नोट्स एज वेल, या आपके ग्रेजुएशन के नोट्स भी आप रेफर कर सकते हो फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन। बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू लर्न द डिजाइन ऑफ ऑटोमेटा ना, हमको पहले ऑटोमेटा लर्न करना है, डिजाइन करना है, देन ओनली वी कैन डू द एक्सरसाइज। तो दैट्स वाई बहुत अच्छी बुक है पीटर लिंच, आपके पास होना चाहिए। इसके एल्गोरिथम सॉरी इसके न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए हो, आपने एक्सरसाइज सॉल्व किया हो, बहुत अच्छी बात होगी। बट कॉन्सेप्ट पहले आपको बिल्ड करना हो। Now you can watch my free series on TOC as well. On compiler, Dragon Book is more than sufficient भाई, यहाँ पर हर चीज आपकी कवर होती है, so that you can refer. तो let me know यदि आपको किसी भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिखना होगा, आई विल प्रोवाइड यू दैट वन, बट कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा। नाउ सी फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क, पहले नंबर पर यहाँ मेरे पास दो बुक है, पहले नंबर पर मैं यहाँ वेटेज दूंगी टेनेनबॉम को, कंप्यूटर नेटवर्क बाय टेनेनबॉम। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन, फॉर द डायरेक्ट क्वेश्चन, जो थ्योरी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट यहाँ से आ रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपसे पूछे जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम द फ्रोजन। तो ये दो बुक्स हमको रेफर करनी है फॉर द प्रिपरेशन, एंड मेरे नोट्स भी इन्हीं दोनों बुक्स का कॉम्बिनेशन। ना यदि डेटा कम्युनिकेशन की बात करें, ये भी आपके 3-4 पार्ट में डिवाइडेड है। ये तो कोर डेटा कंप्यूटर नेटवर्क्स की आपने बात की। नाउ we have mobile technology as well. In this unit we have to cover the mobile technology. तो मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए जो बेस्ट बुक होता है दैट इज शिलर। ठीक है, शिलर का बुक आप रेफर कर सकते हो। एंड अदर देन दिस, हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है जो आपको लर्न करने हैं, दैट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो रिसेंट आर्टिकल है जो आपको यहाँ पर गूगल से मिल जाएंगे, आप उसको रेफर करिए, आप उससे अपने नोट्स बनाइए, आप वहां से अपने एमसीक्यूज प्रिपेयर करिए। बिकॉज ये तो ये जो जो कोर सब्जेक्ट होता है दैट वी कैन कवर फ्रॉम द रेफरेंस बुक, बट जो आपका क्लाउड हो गया या आईओटी हो गया, दीज आर द रिसेंट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, और इसमें डेली चेंजेस आ रहे हैं। तो इसके लिए बेस्ट होगा कि हम रिसेंट कंटेंट लें और उस पर ही
प्रिपरेशन करें। सो गूगल इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर दैट। ठीक है, आप गूगल करिए और वहां से जो बेस्ट कंटेंट है उसको रेफर कर सकते। द लास्ट यूनिट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, पहले तक तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेस्ट बुक होती थी दैट वाज रिच एंड नाइट। अभी भी रिच एंड नाइट है, बिकॉज स्टिल इससे भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, बट नाउ द मैक्सिमम पोर्शन दैट दे आर आस्किंग फ्रॉम द नॉर्विक। नॉर्विक आपकी ये जो बुक है पीटर पीटर नॉर्विक की, इसको आपको रेफर करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू विल गेट एवरीथिंग हियर। Okay, everything will be here. So you can refer book by the Norvig for the artificial intelligence. कॉन्सेप्ट भी होंगे। यदि आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा था एक टेबल आई थी और उस पर आपको प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी थी, वो क्वेश्चन डायरेक्टली नॉर्विक से उठाया गया। या फिर जब हमको जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्टली आपके नॉर्विक से लेकर आ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द बेस्ट बुक यू हैव फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ सी, मैंने जैसा कि बोला था कि लास्ट में मैं आपको दो इम्पोर्टेंट बुक्स की बात भी करूंगी। You are learning from somewhere, you have the content of pdf, in the format of pdf, you have these book in the form of pdf। ठीक है, आप pdf डाउनलोड कर सकते हो। But there should be two books that you have to keep with you. Is one that is the previous year question of the net। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नेट की आपके पास बुक होना चाहिए। नहीं तो आपके पास सारे प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। एटलीस्ट ट्राई टू मैनेज द 10 years प्रीवियस ईयर पेपर। एंड सिमिलरली जो सेकंड बुक मैंने आपसे बात की दैट इज योर गेट प्रीवियस ईयर पेपर। तो यदि ये दो बुक आपने मैनेज कर ली, यदि दो बुक आपने मैनेज कर ली, इनको पढ़ लिया, आपका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता। दीज टू बुक्स यू हैव टू मैनेज, करेक्ट? तो बताइए whether this video is helpful for you or not. If you like this video, please like it, share with your friends, and I have provided the list. If you want any of these PDF, you can connect with me or you can directly go and Google it. आपको आराम से PDF मिल जाएगा। ठीक है, so all the very best for your examination. The 40% flat off is running and the validity till only 25th of June. Enroll for the courses for the detailed coverage of each topic with MCQs and the PYQ. Thank you everyone.